केंद्र सरकार बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 5 वर्ष बढ़ावारो कर्यो गयो ऐलान। टैक्स स्लेब में बदलाव कर 3 लाख ताईं आय वाला ने दीनी छूट। सोना चांदी माथे भी 6% सीमा शुल्क घटायो। विधानसभा में बंधक श्रमिका और मगरा योजना में गांवा ने जोड़वा समेत उठाया गया कई मुद्दा। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा कहो कि बंधक श्रमिका रा सर्वे री चाल रही है कार्रवाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी में आयोजित अभिनंदन समारोह ने कर्या संबोधित। कांग्रेस माथे लगाया भ्रष्टाचार रा आरोप। जयपुर में आयकर विभाग कानीसु जवार सर्किल सु टैक्स वॉकथॉन रो कर्यो गयो आयोजन। कार्यक्रम में आयकर विभाग रा अधिकारी कर्मचारियों समेत कई लोग लीना भाग। और प्रदेश में एक बार फेरू मानसून सक्रिय होबासु बारिश रो दौर जारी। लाड़ला 24 घंटा में राजधानी जयपुर कई इलाका में हुई तेज बारिश। नमस्कार, डीडी राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके सागे विकास और अब खबरां विगतवार। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 5 वर्ष बढ़ावारो ऐलान किनो है। 180 करोड़ लोगों ने मुफ्त में राशन मिले लो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में वर्ष 2024-25 बजट पेश करिया। बजट में केंद्र सरकार 9 प्राथमिकतावां तय की। इनमें खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय विनिर्माण और सेवावा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास और आगली पीढ़ी रा सुधार शामिल है। वे आपरा बजट भाषण में कहो कि भारत की मुद्रा स्फीति कम और स्थिर बणियोड़ी है और 4% रा लक्ष्य री ओर लगातार आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री बजट में पीएम आवास योजना के तहत देश में 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनावा री घोषणा की है। वठई महिलावा और बालिकावा खातिर 3 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। सरकार मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपया करवारो ऐलान भी किनो है। और किसाना खातर घोषणा करता थकावे कहो कि 5 राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड जारी वेला और कई शहर में 100 स्ट्रीट मार्केट खुलेला। साथ ही प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान री शुरुआत वेली। वे कहो कि 20 लाख युवा ने कौशल प्रशिक्षण भी मिले लो। इन खातर वे 7.5 लाख रुपया ताई रो लोन दियो जावे लो। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. Introduction. The people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic 3rd term under his leadership. We are grateful for their support, faith, and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender, and age, make substantial progress in realizing their life goals and aspirations. This budget details some of the specific actions to be initiated in the current year towards fulfillment of these priorities, with potential for transformative changes. The budget also covers some of the previously made announcements with intent to strengthen them and step up their implementation for expediting our journey towards the goal of Viksit Bharat. Women-led development. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961.
The purpose is to make the Act concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to the taxpayers. I will also bring down the demand embroiled in litigation. It is proposed to be completed in 6 months. A beginning is being made in the finance bill by simplifying the tax regime for charities, tedious rate structures, provisions of reassessment and such provisions, and capital gains taxation. Revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. Item number 2. Item number 2. और केंद्रीय बजट माथे और बत्ती जानकारी खातर जयपुर सु माणा खबीर नवीश जका है महेश दादी जी वे माण साथे जुड़ चुक्या है। आइए वाणो बात करा और जाना कि और जो बजट पेश हुए किन तरीकों समाज रे हर तबका रे वास्ते फायदेमंद साबित हुएला। माणा खबर नवीश महेश दादीज माणू जुड़ चुक्या है। जी महेश, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करियो है। मोदी जी काले कियो थो कि 2047 रो जो सपनो है भारत ने विकसित बनावो उन्हें लेनो बजट पेश करने वाला है, तो आपने कई लाग रही बजट में कई कई विशेष प्रावधान करिया गया है और समाज के किन तबका रे वास्ते ज्यादा फायदेमंद साबित होने वालों है। जी महेश। जी विकास, बिल्कुल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर पेश किया है। इस बजट में हर वर्ग हर तबके का ध्यान रखने की यहाँ पर कोशिश की गई है। टैक्सेशन को सरल बनाने की भी कोशिश यहाँ पर दिखाई दी है। तो उद्योग, कृषि से जुड़े हुए तमाम वो सेक्टर जो छुए अनछुए रह जाते हैं उनको भी कहीं न कहीं हर एक पहलू जो है वो इस बजट में देखने को मिला है। मेरे साथ में अलग अलग जो उद्योग हैं और व्यापार हैं उससे जुड़े हुए वर्गों के लोग विशेषज्ञ के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे सबसे पहली प्रतिक्रिया ये ले लेना चाहता हूँ कि किस तरह का ये बजट रहा है, आपके अनुसार क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे अनुसार ये बजट जो है उद्योग सेंट्रिक रहा है, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक रहा है और एग्री सेंट्रिक रहा है, और विशेष तौर पे ये उद्योग और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर स्पेसिफिक रहा है। जॉब्स को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के खास तौर पर फोकस किया गया है। प्राइवेट सेक्टर अब बूस्ट करेगा कहीं? बिल्कुल, जिस तरीके से जो गवर्नमेंट आज वित्त मंत्राणी निर्मला सीतारमण जी ने जो स्कीम्स के बारे में बताया है, वर्णन किया है, उसके अंदर काफ़ी जॉब जो है हर लेवल के जॉब्स क्रिएशन की बात करी गई है। जो आईटीआई से लेकर के मैं जो समझता हूँ फॉर्च्यून 500 टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया हैं, उसमें जो काम करने वाले नए एम्प्लॉयज़ जाएंगे उस लेवल तक के सबको इसके अंदर उन्होंने अकोमोडेट किया है। देश में इस बजट में रोजगार और स्किल पर खास तौर पर बात हुई है। सर, बतौर वरिष्ठ विशेषज्ञ मैं आपसे जानना चाहूँ कि किस तरह से अलग अलग अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, एजुकेशन की, तो इन सेक्टर्स के लिए क्या कुछ आप देखते हैं इस बजट में? डेफिनेटली हेल्थ सेक्टर का जहाँ तक सवाल है, हेल्थ सेक्टर को बहुत प्रोत्साहन दिया है और कैंसर जो बहुत ही डेडली डिजीज़ है, कैंसर की कुछ मेडिसिन का इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म की है, वो एक बहुत ही आलीशान कदम है। इससे कॉस्ट सस्ती होगी और आम आदमी के लिए इलाज आसान हो जाएगा। हेल्थ सेक्टर एक एम्प्लॉयर भी है और जो ट्रेनी एम्प्लॉयज़ के लिए प्रावधान रखा हुआ है फर्स्ट मंथ का और बाद में ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन का, ये भी एक बूस्टिंग फैक्टर होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। युवाओं के लिए एजुकेशन लोन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाना और उद्योग जगत को जो प्रोत्साहन मिले हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उद्योग जगत के बारे में जो वहाँ के विशिष्ट लोग हैं वो आपको ज़्यादा बता पाएंगे। हेल्थ में मैं बहुत ही खुश हूँ कि इस चीज़ को एड्रेस किया है। इससे चिकित्सा संस्थान जितने हैं उनको एक स्ट्रेंथन मिलेगी और आने वाले दिनों में हमारी जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं वो मजबूत होगी। आम आदमी को हेल्थ की फैसिलिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी हमारे यहाँ मेजर फैक्टर रहा है जब हम लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात करते हैं, और इस बजट से ये दोनों चीज़ें एड्रेस हो रही है। बिकॉज अवेलेबिलिटी भी हो रही है, बिकॉज मेडिकल हॉस्पिटल्स बढ़ा रहे हैं
और अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि कॉस्ट दवाओं की कम कर रहे हैं। उद्योगों में सर सबसे महत्वपूर्ण कौन सी ऐसी घोषणा आपको लग रही है जिसके वजह से माना जा सकता है कि उद्योगों को राहत मिलने का काम इस बजट में हुआ है? इसके अंदर जो एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए एक लोन स्कीम लेके आए हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज की डेट में उद्योग जो है स्किल डेवलपमेंट और स्किल्ड लेबर के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। तो जो स्किल लेबर के लिए ये जो एक मतलब है ना स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बना रहे हैं, उसके लिए बच्चों को लोन देने के प्रोविजंस लेके आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो विकसित भारत की डिमांड है स्किल्ड लेबर, वो एक हर मल्टीनेशनल की रिक्वायरमेंट होती है। और आज हमारे पास इंडिया के अंदर हाईएस्ट वर्किंग पॉपुलेशन है, बट व्हेन इट विल बी कन्वर्टेड टू अ स्किल्ड वर्किंग प्रोफेशन, नो डाउट ये उद्योग के लिए बहुत बड़ी राहत है। और ये भी कहा गया है कि 5 सालों के लिए पूरी एक योजना बना करके जो युवा हैं उनको स्किल के तौर पर इनको तैयार किया जाएगा। तो इससे जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो विदेशों से जो कंपनियां हैं, उनको एक बहुत बड़ा है ना बूस्ट मिलेगा और हम अपने आप को मार्केट कर पाएंगे कि हमारे पास abundance of skilled labor is available। मुद्रा लोन के अंदर भी काफ़ी जो है इंक्रीज हुआ है। जैसे उसमें पहले 10 लाख हुआ करता था, अभी 20 लाख उसमें कर दिया गया। तो किस तरह से आप देखते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई के सेक्टर में ये काफ़ी मददगार साबित हो पाएगा? तो मुद्रा लोन बेसिकली द फर्स्ट टाइम जनरेशन एंटरप्रेन्योर और जो छोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। लेकिन हाँ, उसकी लिमिट को इंक्रीज करके थोड़ा सा, बिकॉज आज की डेट में आपको पता जी है महेश, कोई भी एक बिजनेस शुरुआत करने के लिए और सब कुछ सेटअप करने के लिए और करने के लिए एक फंड है, तो उसको डबल जो फंड किया है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन साथ में एमएसएमई के लिए जो प्रोविजंस जो कुछ नए और लगाए हैं, उससे टोटल लगता है कि ये जो फोकस है गवर्नमेंट का वो एब्सोल्युटली इस डिकेड के साथ में है। जैसे इंडिया शाइनिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के साथ साथ ये बजट शाइनिंग बजट हो सकता है। मैम, महिला उद्यमियों के लिए मैं बात करूँ, किस तरह से आप देखते हैं इस बजट में, क्या रिएक्शन आपका है? मेरे हिसाब से ये बजट बहुत अच्छा है। और जो बात आपने शुरू में अभी कही थी मुद्रा लोन का क्या इम्पैक्ट है, तो मुझे लगता है मुद्रा लोन का मेजर जो डिसबर्समेंट था वो महिलाओं को था। और ये जो इन्होंने खोला है कि उस 10 को इन्होंने 20 लाख किया है, तो मुझे लगता है ये मेजर महिलाओं को एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। दूसरा जो इन्होंने फ़र्क किया है वो उन्होंने ये भी किया है कि अभी तक बहुत सारी महिलाएं जो लेके आती थी वो तो यहाँ पर हर वर्ग जो है यहाँ काफ़ी उम्मीदें जताए हुए था, और यहाँ पर जो बजट पेश किया गया उसके बाद में काफ़ी जो उम्मीदें हैं, काफ़ी अपेक्षाएं जो है वो यहाँ पर पूरी हुई है। हर वर्ग और हर तबके का जो है वो ख्याल इस बजट में रखा गया है। जी महेश, कुल मिलाकर इस बजट में हर वर्ग और हर तबका रो ध्यान रखो गयो है और 2047 तक भारत ने जो विकसित बनाउन रो सपनो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखियो है वो इन बजट मायने साफ झलक रही है। फिलहाल बड़ा अगली खबर माथे और विधानसभा की कार्यवाही रे माथे नजर डाला। विधानसभा में आज प्रश्नकाल रे दौरान बंधक श्रमिका मगरा योजना में गांव ने जोड़बा, डायलिसिस मशीन और आरओ सिस्टम खरीदबारो मुद्दा जका है वे उठाया गया है। इन दौरान खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा बंधक श्रमिकारा सवाल माथे जवाब देवता थका कहो कि इंड्रा सर्वे कार्रवाई जारी है। वे कहो कि जिला प्रशासन मुक्त श्रमिकारो पुनर्वास करे है, जिनमाय आर्थिक सहायता रो प्रावधान किनो गियो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो कि भाजपा जनता सु करिया जगा भी वादा करिया है वे सब पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री केकड़ी में आयोजित अभिनंदन समारोह में भाग लीनो। समारोह ने संबोधित करता थका वे कहो कि कांग्रेस माथे कई आरोप लगावता थका वे कहो कि कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार ने बढ़ावो दियो है। वठे वे केंद्र और राज्य सरकार री उपलब्धियां गिनाई। प्रदेश में रोडवेज बसारे निर्धारित बस स्टेण्ड री ठोर सीधी बाईपास सू ले जावा माथे कार्रवाई करी जावेली। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम री अध्यक्ष रेहा गुहा काल जयपुर रा रोडवेज मुख्यालय में सगला मुख्य प्रबंधकारी साथे समीक्षा बैठक में निर्देश दीना। वे बैठक में सीक्यूएम कानी सू जारी निर्देशारी पालना खातर एनसीआर रीजन रा आगाज री पुरानी हो चुकी बसा ने नई BS 6 बसारे बदलबारा निर्देश दीना। साथ ही वे कम राजस्व वाला आगारा ने भी नया वैकल्पिक मार्ग और नया शेड्यूल तलाश कर राजस्व में सुधार रा निर्देश देना। और बुलेटिन रे अंत ने मुख्य खबरा एक कर फेरू। केंद्र सरकार बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 5 वर्ष बढ़ावा करियो गयो ऐलान। टैक्स स्लेब में बदलाव कर 3 लाख ताईं री आय वाला ने दीनी छूट। सोना चांदी माथे भी 6% सीमा शुल्क घटायो गयो।
विधानसभा में बंधक श्रमिका और मगरा योजना में गांव ने जोड़वा समेत उठाया गया कई मुद्दा। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा कहो कि बंधक श्रमिकारा सर्वे री चाल रही है कार्रवाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी में आयोजित अभिनंदन समारोह ने कर्या संबोधित। कांग्रेस माथे लगाया भ्रष्टाचार रा आरोप। जयपुर में आयकर विभाग कानीसु जवाहर सर्किल सु टैक्स वॉकथॉन रो कर्यो गयो आयोजन। कार्यक्रम में आयकर विभाग रा अधिकारी कर्मचारी समेत कई लोग लीना भाग। और प्रदेश में एक फेरू मानसून सक्रिय होबासु बारिश रो दौर जारी। लाडला 24 घंटा में राजधानी जयपुर रा कई इलाका में हुई तेज बारिश। राजस्थानी खबरारो ओ बुलेटिन अठई पुरो। आप देखता रही जो डीडी राजस्थान। नमस्कार।